Because the focus this year is Navdurga, Devi, Shakti of Bharat, I would like to recognize 5 Shaktiyan, even though everyone contributed significantly, but these are the 5 pillars who actually made this happen. So 3 of those are actually participating as actors also. So I won't be calling them on stage, but I'll give a brief introduction about them. But I'll call 2 of them on the stage and they can talk a little bit before I get started with the audio video stuff. So first of all, I would like to acknowledge Anika Shukla for giving us the idea. See, this play is in 3 languages. There are 3 languages used throughout the entire play: Hindi, English, and Sanskrit. So the English portion of the narration is done by the beautiful voice of Anika Shukla. And it is to connect with non-Hindi speaking people, because the entire play is in Hindi, but still if there are younger people or people from different region of India, they need to connect with the play. The second person I want to acknowledge, who is pretty much the brains behind all this. So, there are a lot of brains behind this. So I would like to acknowledge Rachna ji. She runs a dance school. Woo! Rachna Chauhan ji, Dance Creation School in Ashburn. So there are 9 dances on some shlokas. So she choreographed all those dances and of course contributed to the overall direction of the play. Third one is my very good friend Uma. So Uma is jack of all trades. So she contributed with pretty much everything: narration, direction, props, everything, right? So these are the 3 people who are not going to be called on this stage, unfortunately, because we don't want to spoil the secret or the surprise. But 2 people I want to call, please clap for Paridhi Gupta and Nilima. So Paridhi and Nilima, if you can be on this stage, I would like to acknowledge you. So anyways, while they're, oh, here you are. So, Nilima, she is a trained Bharatnatyam teacher and Kuchipudi teacher, sorry. And she works with Lakshmi Babuji and she is a makeup artist. She runs her own business and she's the lead director for the program. And she choreographed the 2 songs, Har Har Mahadev and I Giri Nandini, for the play. So big round of applause for her. She's my good old friend for quite some time now. And she's Paridhi Gupta. So Paridhi Gupta ji is a scientist by profession, but an art lover by nature. इनकी हिंदी में mastery is very much evident from the narration. So you'll hear her graceful voice throughout the play. And she has been a volunteer for VHPA for quite some time. She has been the Hindi, one of the oldest teacher in the Bal Vihar Hindi School, and she serves on the board for VHPA as the Director of Education as well. And she contributed towards the narration, towards the overall direction and props and many different things. So I'll hand over to these 2 ladies. You can talk about the play a little bit, give some stats, and then we can start while I prepare. Namaste everyone. First of all, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you to all of you for taking out time and being here with us, celebrating Shri Ram Mandir inauguration's anniversary. We have been putting a lot of hard work for past several weeks. जैसे अनिमेश ने बोला, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सभी एज ग्रुप के लोग involved हैं. And a lot of bling gets added when we have the right costumes and props. So we have tried a lot to keep it as extravagant as possible. और उसी के लिए बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद विश्व हिंदू परिषद and especially Kamal Bhai ka. So we had to bring a lot of things from India. And given the current scenario, we were very scared whether the things will reach in time to make it happen here. But thanks to all the volunteers. Big round of applause for him, especially in this
difficult situation. So we are thankful that we have what we needed, and we have tried very hard to, bring a summary of the 9 stories associated with 9 forms of Mahadi Shakti. As you can imagine, it can take many, many days to be properly detailed and give a full detailed description of all the stories. So please take it with a pinch of salt that we tried to summarize it in a very short time and bring a small glimpse of what, how the 9 forms of Shakti came into being and what are the stories behind that. We feel very, very blessed that it's falling on the 3rd day of Navratri. So special, excitement because of that. What else? Everyone worked hard. Everybody worked hard. So please, अगर कोई त्रुटि हुई हो, स्टोरी सुनाने में या डिटेल कुछ मिसिंग लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए अभी से क्षमा प्रार्थी हैं हाथ जोड़ के. So now sit back and enjoy the show. धन्यवाद. रवि जी जल्दी कीजिए, अभी कितना काम पड़ा है. खाना बनाना है, पूजन करना है. हे देवी माँ, कन्याएं 11 बजे तक आ जाएंगी और अभी तक नहाई भी नहीं हूँ. प्रिया जी, आप चिंता ना करें, मैं सारे काम ना जल्दी से कर दूंगा. डोंट फियर व्हेन रवि इज हियर. फिल्मी बातें करा ले बस आपसे तो. वैसे प्रिया जी, मैंने हमेशा देखा है आप साल में 2 बार ये पूजा करती हो, बच्चों को लंच पे भी बुलाती हो, पर हमेशा सिर्फ हलवा और पूरी ही बनाती हो और फिर बच्चों को रिटर्न गिफ्ट भी देती हो. ऐसा क्यों? हे देवी माँ, इनको क्षमा करना. इधर आइए, मैं आपको बताती हूँ. हम हर साल 2 बार नवरात्रि मनाते हैं. अभी चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और 9वें दिन हम रामनवमी भी मनाएंगे. हम देवी माँ का पूजन करते हैं और प्रसाद में हलवा, पूरी, काले चने बनाते हैं. हलवा represents sweetness, पूरी signifies wholeness और चना strength को represent करता है. All traits of माँ दुर्गा, समझे? और हम 9 कन्याओं को बुलाते हैं जो देवी माँ के 9 रूपों को दर्शाती हैं. हम कन्याओं की भी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसाद देते हैं, लंच पे नहीं बुलाते और उन्हें कुछ भेंट देते हैं जिसे आप रिटर्न गिफ्ट कह रहे हैं. वाओ, देवी माँ के 9 रूप हैं. अमेजिंग. प्रिया जी और बताइए, मुझे अब शायद समझ में आ रहा है कि नवरात्रि को नवरात्रि क्यों बोलते हैं. हाँ रवि जी, देवी माँ के 9 रूप हैं और नवरात्रि के हर दिन हम माँ के एक रूप को सेलिब्रेट करते हैं. आपको पता है, देवी माँ के हर रूप की एक कहानी है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. चलिए अपने मंदिर में चलते हैं और मैं आपको वो सारी कहानियां बताती हूँ. चलिए चलिए. On day 1 of Navratri, we worship Shailaputri. This story is not just divine history, it is a reminder of resilience. She shows us that even when torn apart by pain,
betrayal, and loss, we can rise again. ब्रह्मा के मनस पुत्र महाराज दक्ष और महारानी प्रसूति की एक अति सुंदर और तेजस्वी पुत्री थी, सती। बाल्यकाल से ही सती के मन में भगवान शिव बसे हुए थे। सती ने मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। तब दक्ष को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री का विवाह उस भस्म से लिपटे शमशानवासी योगी भगवान शिव के साथ करना पड़ा। पर दक्ष शिव को अपने दामाद के रूप में ना मन से स्वीकार कर पाए और ना ही सम्मान करते थे। उन्हें लगता था कि ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से कैसे हो सकता है जो शेर की खाल धारण करता है, सांप को आभूषण की तरह गले में पहनता है, कंदमूल खाता है और शमशान में रहता है। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। देवता, ऋषि, गंधर्व, परिवार और संबंधी सभी को आमंत्रित किया गया, पर शिव और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। सती को इस बात का ज्ञान नहीं था, पर जब उन्होंने अपनी सभी बहनों और परिवारजनों को अपने मायके की ओर जाते देखा, तो उनका भी मन अपने माता पिता के घर जाने को उत्सुक हो उठा। भगवान शिव ने सती को रोकने और समझाने का प्रयास किया, पर अंततः सती अपने माता पिता के घर चली ही गई। वहां पहुंचते ही जब सती को इस स्थिति का ज्ञान हुआ, तब उनका हृदय टूट गया और वे सोचने लगे क्यों उनके पिता ने भगवान शिव, जो सृष्टि के आधार हैं, उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। उन्हें समझ आ गया कि शिव को अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया गया था। दक्ष ने सबके सामने उनका तिरस्कार किया और बिना निमंत्रण आने के लिए लज्जित और अपमानित भी किया। यह अपमान केवल सती का नहीं, बल्कि उनके पति शिव का भी था। अपने ही पिता द्वारा किए गए तिरस्कार और अपमान से व्याकुल होकर सती ने अपने अंतर्मन की दिव्य अग्नि जागृत की और कहा, ये शरीर मेरे पिता का दिया हुआ है और आज मैं इसे यहीं त्यागती हूँ। और वे योगाग्नि में समा गई। जब कैलाश पर बैठे देवाधिदेव महादेव को इस घटना का आभास हुआ, तो अपनी पत्नी के वियोग की पीड़ा ने उनके हृदय को तोड़ दिया। उनका क्रोध ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। उनकी जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हुई, जिन्होंने यज्ञ स्थल का विनाश कर दिया। भगवान शिव माता सती के जले हुए शरीर को लेकर वहां से चले गए। वो शोकाकुल हो गहन समाधि में लीन हुए। दूसरी ओर पर्वतों के राजा हिमवंत और रानी मैना ने देवी मां को पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। तब माता सती ने प्रसन्न होकर उनके घर शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री, देवी मां का प्रथम रूप। On the second day of Navratri, we worship Ma Brahmacharini, a symbol of perseverance and ekagrata, who with her intense tapasya won Shiva's heart. शैलपुत्री, जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, जन्म से ही एक कोमल, पवित्र और दिव्य तेज से युक्त कन्या थी।
बचपन से ही वह शिव भक्ति में लीन रहती थी। हर सांस में शिव का नाम, हर गीत में शिव की भक्ति, हर नृत्य में शिव का ध्यान। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, शिव को पाना। सती के प्रेम के कारण ही उनका पुनर्जन्म हुआ था, परंतु इस बार उस प्रेम को पाने के लिए उन्हें स्वयं को तपस्या की अग्नि में तपाना था। जब उन्हें पता चला कि भगवान शिव हिमालय की गहरी गुफाओं में गहन तपस्या में लीन हैं, तो वे अपने पिता हिमवंत के साथ शिव जी की सेवा और आराधना करने पहुंच गए। वे दिन प्रतिदिन उनकी सेवा अर्चना करती, भोजन अर्पित करती और उनके चरणों में प्रार्थना करती। पर भगवान शिव का मन समाधि में पूरी तरह विलीन था। उन्होंने पार्वती की ओर देखा तक नहीं। कई वर्ष तक ऐसा ही चलता रहा और पार्वती का मन निराश होने लगा। तब पार्वती का मार्गदर्शन करने के लिए ऋषि नारद प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, सेवा से नहीं तपस्या से शिव प्रसन्न होते हैं। उनका प्रेम पाने के लिए आपको अपने अस्तित्व को ही तपस्या में समर्पित करना होगा। उसी क्षण से पार्वती ने अपने जीवन यात्रा की दिशा बदली। उन्होंने एक एक कर सब कुछ त्याग दिया। पहले अन्न छोड़ा, फिर फल, फिर पत्ते, अंत में वे केवल वायु पर जीवित रही। उनकी तपस्या 3000 वर्ष तक चली। उनकी तपस्या से त्रिलोक कांप उठे और देवी देवता भी विचलित होने लगे। इसके पश्चात भी जब शिवजी का ध्यान पार्वती की ओर नहीं गया, तब उनके हृदय में पार्वती के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। देवताओं के आग्रह पर कामदेव ने अवसर दे शिवजी पर अपना काम बाण चला दिया, जिसके कारण शिवजी का ध्यान भंग हो गया। क्रोध में आ शिवजी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। पर शांत होने पर उनकी दृष्टि तपस्या के तेज से चमकती हुई पार्वती पर पड़ी। तेजस्वी, अडिग, भक्ति से परिपूर्ण शिव ने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया और उनके माता पिता से विवाह का प्रस्ताव रखने का वचन दिया। पार्वती ने विनम्रता से शिवजी से अनुरोध किया कि वे कामदेव को क्षमा कर उन्हें पुनः जीवित कर दें। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर पार्वती जी का अनुरोध स्वीकार किया। शिवजी के आशीर्वाद से कामदेव ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लिया। मां ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या, त्याग और प्रेम की शुद्धता का प्रतीक है। On day 3 of Navratri, we worship Ma Chandraghanta, an embodiment of both strength and serenity. She is the sound of the celestial bell that drives away fear and darkness. She teaches us that courage is not the absence of fear, but the grace to fear it with calm strength. शिव और पार्वती के विवाह की तैयारियां पूरे हिमालय में धूमधाम से शुरू हो चुकी थी। देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी विवाह के लिए उत्सुक थे। भव्य मंडप सजाया गया, अनगिनत पकवान बनाए गए,
देवताओं और ऋषियों के लिए विशेष आसन लगे, सुगंधित पुष्पों की साज सज्जा और चारों दिशाओं में सुगंधित धूप की महक। 10 दिशाओं से देव, गंधर्व और अतिथियों को आमंत्रित किया गया। हिमवन और मैना अपनी बेटी के विवाह को लेकर उत्साह और गर्व से भरे हुए थे। उधर कैलाश पर शिव प्रसन्नतापूर्वक अपने स्वाभाविक रूप में सुसज्जित हुए। शरीर पर भस्म, गले में सांप, जटाओं में गंगा, रुद्राक्ष मालाएं और नंदी पर सवार होकर विवाह के लिए आने लगे। उनके साथ उनके गण थे, भयंकर, विचित्र, अद्भुत रूप वाले भूत, पिशाच, योगी और अघोरी। किसी के दांत निकले हुए, कोई नगाड़े बजा रहा था, कोई नंदी के पीछे उछल रहा था। हर हर महादेव। जब शिवजी की यह विचित्र बारात पार्वती के घर पहुंची तो पर्वत कांप उठे और सभी घर वाले भयभीत होने लगे। देवता भी आश्चर्य से देखते रह गए। पार्वती की माता और सखियों ने सोचा था कि कोई तेजस्वी और रूपवान राजकुमार हुआ होगा, परंतु यहाँ तो भस्म रमे हुए योगी और उनके भूतों की टोली बारात लेकर आए हैं। उधर रानी मैना ने जब शिव और उनके गणों को देखा तो उनका हृदय भय से भर गया। वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। हिमवन भी चिंतित हो गए। यह सब देख पार्वती ने भी अपना दिव्य उग्र रूप धारण कर लिया। 10 भुजाएं, प्रत्येक में दिव्य अस्त्र, सिंह पर आरूढ़, मस्तक पर अर्धचंद्र की घंटी सी आभा। यह रूप इतना शक्तिशाली और तेजोमयी था कि पृथ्वी तक कांप उठी। उनकी घंटी की ध्वनि के कंपन से अंधकार टूट गया। उनकी आंखों में शांति भी थी और तेज भी। देवी पार्वती का यह रूप चंद्र घंटा कहलाया। एक तरफ यह रूप देख पिता हिमवन और माता मैना भयभीत हो चिंता में डूब गए। दूसरी ओर भगवान शिव ने यह रूप देखा और प्रेम से परिपूर्ण हो मुस्कुराने लगे। पार्वती ने शिव से कहा, आप जिस रूप में रहेंगे मैं भी उसी रूप में आपका स्वागत करूंगी। पार्वती के माता पिता की चिंता दूर करने के लिए शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग एक दिव्य सौम्य राजसी स्वरूप धारण किया। गणों ने भी सुंदर रूप ले लिया। यह देख पार्वती ने भी अपना उग्र रूप त्याग वापस अपनी कोमल सौम्य सुंदरता को धारण किया। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। पृथ्वी पर सबने प्रसन्नता के गीत गाए। देवलोक से पुष्पों की वर्षा हुई। ब्रह्मांड ने एक बार फिर स्वयं को पूर्ण पाया, क्योंकि शिव और शक्ति एक हो गए। चंद्र घंटा का रूप सिखाता है कि प्रेम के साथ शक्ति और शांति के साथ साहस का होना आवश्यक है, और एक स्त्री के हृदय में दोनों समान रूप से बसते हैं। चंडकोपास्त्र
On day 4 of Navratri, we worship Ma Kushmanda, the light in the darkness, warmth in the void. The mother of creation itself, she protects, shelters, and nourishes like a mother. सृष्टि के आरंभ से पहले कुछ भी नहीं था। ना काल था, ना दिशा, ना पृथ्वी, ना आकाश, सिर्फ एक गहरा अनंत अधूरा सा अंधकार। ब्रह्मांड एक शांत निशब्द बिंदु की तरह था, जैसे कोई बीज जो अभी अंकुरित होना बाकी हो। और फिर उस शून्य के बीच एक कोमल सी लहर उठी, एक मुस्कान, एक दिव्य कोमल अपार शक्ति से भरी मुस्कान। वह मुस्कान थी आदि शक्ति की, वह मुस्कान थी मां कुष्मांडा की। ये नाम ही देवी के इस रूप की पहचान है। कुंभ का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अन्न का अर्थ है बीज। मां कुष्मांडा। कहते हैं जब देवी ने अपनी पहली मुस्कान बिखेरी तब एक तेजोमयी ऊर्जा उत्पन्न हुई, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के बीज को अंकुरित कर उसमें प्रकाश भर दिया हो। इसी प्रकाश से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इसीलिए उनका नाम पड़ा कुष्मांडा, यानी वो जिनकी मुस्कान से सृष्टि का जन्म हुआ। सूर्य के केंद्र में विराजमान होकर वे समस्त जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है। उनकी शक्ति से ही पृथ्वी पर जीवन का प्रवाह चल पाता है। उन्होंने ही ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान दिया, विष्णु को पालन का कर्तव्य और महेश्वर को संग्रह का धर्म भी बताया। तीनों लोकों का संतुलन उनकी एक मुस्कान से ही संभव हुआ। मां कुष्मांडा का रूप सिखाता है कि हर आरंभ एक छोटी सी किरण, एक छोटे से बीज से होता है और यहीं से शुरू हुआ हमारे ब्रह्मांड का निर्माण, एक देवी की कोमल मुस्कान से। सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कूष्माण्ड शुभदास्तु मे कूष्माण्ड शुभदास्तु मे। On the 5th day of Navratri, we worship Ma Skandamata, she who carries Skanda in her lap. When we surrender to the Divine Mother, she carries us just as she carries Skanda towards victory, courage, and wisdom. एक समय की बात है, वर्षों की तपस्या के बाद असुर राज तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। तारकासुर को लगा कि शिव और देवी पार्वती तो सदा तपस्या में लीन रहते हैं और उनका कोई पुत्र नहीं है, इसलिए कोई उसे मार नहीं सकता। वह स्वयं को अमर समझने लगा। इसी अहंकार में उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना आरंभ कर दिया। उसका नाम सुनते ही देवलोक का सिंहासन तक कांप उठता था। चारों दिशाओं में हाहाकार मचने लगा। लेकिन ब्रह्मांड के नियम कभी अधूरे नहीं रहते। जब सही समय आता है, शक्ति स्वयं मार्ग बनाती है। तारकासुर के आतंक का अंत करने और देवताओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए शिव और पार्वती की दिव्य शक्तियों के मेल से
एक अत्यंत तेजस्वी बीज रूपी ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवताओं ने शिव पार्वती के इस दिव्य बीज को परिपोषित करने का प्रयास किया, पर कोई भी उसके तेज को सहन नहीं कर सका। अग्निदेव भी उस दिव्य बीज की शक्ति को सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उस दिव्य बीज को मां गंगा के शीतल जल में प्रवाहित कर दिया। तब आकाश से अलौकिक दिव्य कृतिकाएं प्रकट हुई और उनकी सहायता से गंगा मां के तट पर शिव पार्वती के दिव्य बीज से 6 तेजस्वी शिशु उत्पन्न हुए। उसके पश्चात मां पार्वती ने अपनी मातृत्व की दिव्य शक्ति से उन 6 शिशुओं को एक रूप में मिला दिया और जन्म हुआ 6 मुख वाले तेजस्वी दिव्य योद्धा कार्तिकेय का, जिन्हें स्कंदा या मुर्गन भी कहा जाता है। जब पार्वती ने स्कंदा को अपनी गोद में उठाया तब उनका रूप बदल ही गया। उनकी आंखों में मां का प्रेम था, उनके हाथों में रक्षा का संकल्प और उनके हृदय में पूरे ब्रह्मांड के लिए करुणा। उनका रूप इतना कोमल, इतना शांत, इतना पवित्र था कि देवलोक ने उन्हें एक नया नाम दिया, स्कंद माता, स्कंदा की मां। अंततः शिव पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध कर उसका वध किया। स्कंद माता का रूप सिखाता है कि मां की शक्ति अपार है, मां के हृदय में प्रेम भी है, साहस भी है और रक्षा का संकल्प। सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया, सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी, स्कन्दमाता यशस्विनी, स्कन्दमाता यशस्विनी। On the 6th day of Navratri, we worship Ma Katyayani. Her victory reminds us that no matter how powerful our inner demons may be, with devotion, strength, and perseverance, the light of the divine feminine can and will prevail. महिषासुर एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर दानव था, जो इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकता था। ब्रह्मा जी से उसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल एक स्त्री ही मार सकती थी। इस वरदान को पाने के बाद महिषासुर खुश होने लगा कि वह अब अमर है, क्योंकि कोई कोमल निर्बल स्त्री क्या ही उसे पराजित कर सकेगी। इसी अहंकार में डूबकर उसने तीनों लोकों में अत्याचार की हर सीमा पार कर पृथ्वी करार रही और ब्रह्मांड एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहा था जहां अंधकार का राज होने लगा। महिषासुर के आतंक से त्रस्त होकर देवताओं ने त्रिदेव से सहायता मांगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव की शक्तियों को मिलाकर एक देवी प्रकट हुई, मां दुर्गा। सभी देवताओं ने मां दुर्गा को अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव का वज्र, वरुण देव का शंख, कुबेर की गदा, वायुदेव के धनुष बाण, हिमालय का सिंह इत्यादि। देवी दुर्गा का रूप प्रचंड था, उनके मुख पर तेज और हाथों में शस्त्रों की प्रलय। उसी समय पृथ्वी पर
ऋषि कात्यायन देवी भगवती को अपनी पुत्री रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। जल्दी ही देवी कात्यायनी की अलौकिक सुंदरता की चर्चे होने लगी। देवी कात्यायनी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर महिषासुर ने अपने दूतों के हाथ देवी से विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने हंसकर उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। अपने इस तिरस्कार के अपमान से महिषासुर क्रोधित हो उठा और देवी कात्यायनी को ललकारता हुआ युद्ध करने पहुंच गया। महिषासुर ने अपनी सेना भेजी। असुरों की गरज से धरती कांप उठी, पर कात्यायनी शेर पर सवार 10 हाथों में शस्त्र लिए युद्ध भूमि प्रकट हुई। उनकी गरज से असुर सेना भयभीत हो गई। उनका प्रहार बिजली की तरह तीखा, उनके संकल्प फजर की तरह अडिग थे। 10 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा। महिषासुर कभी भैंस, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी मनुष्य के रूप में आता और देवी कात्यायनी से युद्ध करता, पर हर रूप में पराजित हो जाता। अंततः 10वें दिन देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से प्रहार करके महिषासुर का वध कर दिया। इसी कारण इन्हें महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। उस क्षण देवलोक में उत्सव मनाया गया। पृथ्वी पर फूलों की वर्षा हुई और ब्रह्मांड ने महसूस किया कि न्याय का राज कभी समाप्त नहीं हो सकता। चन्द्रहासोज्ज्वलतया शार्दूला वरवाहना चन्द्रहासोज्ज्वलतया शार्दूला वरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी देवी दानवघातिनी। On day 7 of Navratri, we worship Ma Kalaratri, who teaches us that even in the darkest of death battles, there is always hope. No challenge is impossible with courage, focus, and determination. If we give our best effort, victory is certain. एक समय शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था और देवलोक पर अधिकार जताना शुरू कर दिया। ब्रह्मांड एक ऐसे युग की ओर बढ़ रहा था जहां सत्य और शांति का कोई अस्तित्व ही न बचे। तब देवताओं ने एक बार फिर माता पार्वती से सहायता मांगी। जब मां पार्वती ने शुंभ निशुंभ द्वारा किए हुए विध्वंस को देखा तो वे समझ गई कि इस बार अत्याचार और भय का अंधकार इतना गहरा था कि उसे तोड़ने के लिए उन्हें भी अपना सबसे भयंकर रूप धारण करना पड़ेगा। तब पापियों के विनाश के लिए मां पार्वती ने अपना उग्र, शक्तिशाली, भयंकर रूप धारण किया। पार्वती के शरीर से एक प्रचंड तेज निकला। उस तेज से प्रकट हुई मां कालरात्रि। उनका रूप इतना भयभीत करने वाला था। उनका वर्ण तमस जैसा काला, उनके केश अग्नि की तरह लहराते और उनकी दृष्टि बिजली की तरह प्रचंड। उनके कदम पड़ते ही असुरों में कोलाहल मच गया। काल रात्रि का दर्शन मात्र शुंभ निशुंभ की सेना के हृदय में भय का बीज बो देने वाला था। मां कालरात्रि ने युद्ध में निशुंभ का वध किया तो शुंभ भयभीत होकर भाग गया। उसने अपने सेनापति रक्तबीज को मां काली से युद्ध करने के लिए भेजा। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर बूंद जो धरती पर गिरेगी उससे एक नया रक्तबीज जन्म ले लेगा। इस वरदान के कारण रक्तबीज पे विजय पाना असंभव सा लगने लगा। जब देव सेना ने उस पर प्रहार किया तो देखते ही देखते युद्ध भूमि में असंख्य रक्तबीज उत्पन्न होने लगे।
एक रक्त बीज, 100 रक्त बीज, फिर 1000। युद्ध भूमि एक प्रलय का दृश्य बन गई। कालरात्रि ने शेर की तरह गरज कर युद्ध भूमि में कदम रखा। उन्होंने बिजली की गति से असंख्य रक्त बीजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। तब मां कालरात्रि ने अपनी विशाल जीवा से रक्त बीज के रक्त की हर बूंद धरती पर गिरने से पहले ही पी। रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा और अंत में मां कालरात्रि ने अंतिम रक्त बीज पर प्रचंड गर्जना के साथ प्रहार कर उसका संहार कर दिया। फिर से अधर्म पे धर्म की विजय हुई और ये प्रमाणित हुआ कि अंधकार कितना भी गहरा हो, शक्ति का एक प्रहार उसे मिटा सकता है। एकवेणी जपा करना पूरनग्नाखरस्थिता एकवेणी जपा करना पूरनग्नाखरस्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी कैलाभृत शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहा लताकण्टकभूषणा वामपादोल्लसल्लोहा लताकण्टकभूषणा वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी कालरात्रिर्भयङ्करी। On day 8 of Navratri, we worship Ma Gauri. Her story is not only of inner beauty regained, but of inner transformation. After our struggles, penance, and battles with inner darkness, we emerge stronger, brighter, and purified. Washed clean in surrender and devotion, we shine with resilience, ready to protect ourselves and others from injustice. जब घोर अंधकार के बाद प्रकाश स्वयं रूप धारण करता है, तब शुरू होती है पवित्रता और शुद्धि की गाथा। मां कालरात्रि का रूप, जो कुछ क्षण पहले प्रचंड अग्नि की तरह धधक रहा था, अब समय था उस अग्नि को शांत करने का। उनका वर्ण रात के समान काला पड़ गया था। उनके केश रक्त में डूबे उलझे हुए थे और उनकी आंखों में युद्ध की थकान बस गई थी। उनकी अग्नि को शांत करने के लिए भगवान शिव ने उनसे निवेदन किया कि अब वो पुनः अपने कोमल स्वरूप को धारण करें और मां गंगा के शीतल जल में अपनी अग्नि को शांत करें। मां कालरात्रि ने धीरे से गंगा में प्रवेश किया। उन्होंने अपने हाथों से अपने मुख को धोया। जल से ऊपर आते ही देवी का रूप बदल गया। युद्ध की धूल, तपस्या की कालिमा सब धुल गई। जल से बाहर आते ही उनका स्वरूप चंद्रमा सा उज्ज्वल, दूध सा श्वेत, अत्यंत शांत, कोमल और प्रकाशमयी हो गया। मां का यही रूप महागौरी कहलाया। महागौरी पवित्रता का रूप, शुद्धि का प्रतीक, वो शक्ति जो अंधकार के बाद प्रकाश बनकर उभरती है। महागौरी का रूप सिखाता है कि शुद्धि का अर्थ केवल पवित्रता नहीं, बल्कि स्वयं को फिर से पहचानना है, अपने रूप को, अपने हृदय को, अपने अस्तित्व को फिर से नवीन रूप प्रदान करना है। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यात् महादेव प्रमोदना महादेव प्रमोदना महादेव प्रमोदना।
On day 9 of Navratri, we pray to Ma Siddhidatri. She represents a state where devotion, tapasya, and inner purification lead to completeness. माँ आदि शक्ति ने जब कुष्मांडा के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण आरंभ किया, उसके पश्चात सृष्टि की रचना और निर्वहन के लिए शक्ति के एक और मूल तत्व की आवश्यकता थी, जिसके लिए माँ आदि शक्ति ने अपने अस्तित्व से एक कोमल दिव्य प्रकाशमयी रूप प्रकट किया। सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री, सभी शक्तियों का स्रोत। माँ की आज्ञा से ब्रह्मा को इस सृष्टि का रचयिता, विष्णु को पालन करता और शिव को आदि योगी का उत्तरदायित्व मिला। कहते हैं भगवान शिव ने भी आदि शक्ति के इसी स्वरूप की गहन तपस्या और आराधना करी, जिससे प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री ने शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, जिनमें से 8 सिद्धियां सबसे प्रमुख हैं। ये सिद्धियां केवल शक्ति नहीं, ये ब्रह्मांड के नियम हैं। जब ब्रह्मा जी ने सिद्धिदात्री से पूछा कि सृष्टि की रचना के कार्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए, तब माँ ने कहा, सृष्टि का मूल तत्व स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलित संगम है। इसीलिए शिवजी ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, आधे शिव और आधी शक्ति। इसी रूप से सृष्टि का निर्माण कार्य आगे बढ़ा। यह रूप एक ही बात का प्रमाण था, स्त्री और पुरुष मिलकर ही सृष्टि को पूरा करते हैं, ना एक अधिक ना एक कम। माँ सिद्धिदात्री का रूप साधना में पूर्णता, दुखों से मुक्ति और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। जब नवदुर्गा का ये अंतिम रूप प्रकट होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं पूरा हो जाता है। तो रवि जी बताइए, अब आपको समझ आई ना देवी माँ के 9 रूपों के पीछे की क्या क्या कहानियाँ हैं। अच्छा चलिए, अब कन्याएं भी आ गई हैं जो इन 9 देवी के अवतारों का स्वरूप है। उनका स्वागत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें ये भेंट देते हैं। चलिए। Lisa.